Hello students, once again I welcome you all in my new video. Okay students, and this video is for class 12th, and this is the first video after the session break of the students of my school, and once again I welcome you all. Okay, and this video is for class 12th, and in this we are going to take up chapter number 10. Chapter number 10. Okay, name is microbes in human welfare. Microbes in human welfare means there are some microbes which are very useful for human beings. Okay, वैसे तो आप लोग सभी लोग have been taught since your childhood especially that microbes are the harmful. Okay, they causes many diseases. We can say dangerous disease is called corona. Okay, due to virus name is the COVID-19. ओके बच्चों, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जो एक कोरोना होता है ना, एक ग्रुप ऑफ द फैमिली है ऑफ द वायरस. वायरसेस आर क्लासिफाइड इनटू 6 ग्रुप्स, और जिस ग्रुप से आता है वो कोरोना है. लेकिन उस वायरस का नाम क्या रखा गया बाद में बाय WHO? COVID-19, because it was discovered in 2000. It was appeared first time ever in 2019 only. ठीक है, चूंकि ये पढ़ रहे थे इसलिए बता दिया आपको. ओके बच्चों, और माइक्रोब्स इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. Microbes is the short form of the microorganisms. So what is the definition of the microbes? The organism which cannot be seen. The organism which cannot be seen with naked eyes are called microbes, or we can say microorganisms. Okay बच्चों, example bacteria, viruses, fungi, protozoans, viruses, prions, mycoplasma. Okay students, so bacteria you all must be knowing. Viruses are the chain between the living and non-living. Fungi you all must be knowing. Protozoans, for example plasmodium and Amoeba histolytica. क्लास 11 में हम लोग पढ़े थे इसको, ठीक है. और पैरामीशियम न्यूक्लिना, these are the protozoans. Viruses means group of the microbes having only DNA. उनके पास क्या हो, DNA होते हैं. वो prions are the infectious protein. infectious agent होते हैं, केवल प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत ही सीवियरली कॉज करते हैं डिजीज को. ठीक है, बट वेरी लेस इन नंबर. माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है, ये भी क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, somewhat similar to viruses, somewhat. So इस माइक्रोप्लाज्मा की क्या होती है शेप, खासियत क्या होती है, इसकी शेप बदलती रहती है. That is why it is called joker of the living beings. ठीक है, जो भी लिविंग बींग्स होते हैं उसमें क्या शेप बदलता रहता है, जो स्पेशली माइक्रोब्स में. ठीक है, तो ये माइक्रोप्लाज्मा हो गया. सो फर्स्ट थिंग which we are going to study, that is the microbes in household products. Microbes are useful in household products, first thing. Secondly for making antibiotics. Okay, thirdly for making alcohol भी बनते हैं माइक्रोब से. Okay, they are useful in biotechnology. In this year we will be studying in chapter number 11th बायोटेक्नोलॉजी. ओके, उसमें हम लोग पढ़ेंगे इसको. और माइक्रोब्स का यूज ही होता है कहाँ पे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में. इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, every second third year it is asked. Okay, so now begin topic with the microbes in household products. Household means घरेलू, डोमेस्टिक कामों में, घरों में. ठीक है, हाउसहोल्ड घरों में जो होते हैं. So conversion of milk into curd. It converts milk into curd. एक योगर्ट भी होता है बच्चों,
कर्ड का टेस्ट थोड़ा सा क्या होता है, सॉर होता है, खट्टा होता है, बट योगर्ट हैविंग सम स्वीटनेस, उसमें क्या होता है स्वीटनेस, उसमें स्पेशल काइंड ऑफ माइक्रोब्स आर यूज्ड। इसमें क्या होता है लैब, उसमें स्पेशली एक फंगस की स्पेशल जीनस होती है, उसको यूज करते हैं, दैट इज व्हाई दैट इज लिटिल कॉस्टलियर। ठीक है, तो मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड, मिल्क इज हियर एंड इज अ कर्ड, व्हाट इज यूटिलाइज्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, द फुल फॉर्म ऑफ द लैब इज द लैक्टिक acid bacteria. That means there are some group of the bacteria which produces the lactic acid and they are known as commonly lab. Lactic acid bacteria is the plural and bacterium is the singular. Okay, bacterium क्या है singular है, and one of the main bacterium in this group is लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। इसी तरह से 7-8 होते हैं इसमें, बट वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ बैक्टीरिया है रिटन लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ये इसी ग्रुप का पार्ट है, मेजर पार्ट है। ओके, एंड मिल्क जब कन्वर्ट होता है कर्ड में, तो देयर इज अ एनरिचमेंट ऑफ द विटामिन B12 साइनोकोबैलामिन। साइनोकोबैलामिन is the chemical name of vitamin B12। ओके, और B12 क्या करता है, द मैच्योरिंग ऑफ द वी कैन से that is called hemoglobin, we can say ribose, that is called RBCs के मैच्योर होने में हेल्प करता है ये, हीमोग्लोबिन की नहीं आरबीसीज के। ठीक है, तो आरबीसी जब मैच्योर हो जाती हैं तो ही हमारे बॉडी में क्या करती है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करती है, किसका, हीमोग्लोबिन का। ठीक है बच्चों, एंड लैब इज इटसेल्फ हैविंग सम स्पेशल पॉइंट, कन्वर्ट पार्शियली केसिन प्रोटीन। व्हाट हैपेंस, दे कन्वर्ट द केसिन प्रोटीन क्या करते हैं बच्चों, ये कन्वर्ट करते हैं partially, it happens in milk to be converted into the curd. Next is the convert lactose sugar को भी कुछ हद तक क्या करते हैं, to some extent। ठीक है, इसीलिए तो दूध ये क्या होता है, milk is the sweet but it is not sweet, having two reasons। first, formation of lactic acid हमेशा सॉर होते हैं, if there is acid it gives the sour taste। in class 9th 10th in chemistry 9th 10th in the chemistry you have studied। ठीक है ना, ठीक है। विटामिन B12 synthesis we have already discussed। next is the prevent from diseases where there is a acid, other harmful microbes cannot grow, अदर जो हार्मफुल होते हैं वो ग्रो नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल in female genital tract, to some extent into the male case also। okay, female that means that is not letting any microbes to grow into the female genital tract। ठीक है, हमारे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं ये। ओके बच्चों, चलो, तो ये चारों बातें लैब के बारे में ये है। ठीक है, लैब एंड इसमें डिफरेंस समझ आ गया। लैब क्या है, ग्रुप ऑफ द बैक्टीरिया है जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। वन ऑफ द मेजर बैक्टीरिया इज द लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। सेकेंड इज द टोडी। एक्चुअली इन नॉर्थ इंडिया इट इज कॉल्ड ताड़ी, पीपल हैविंग ड्रिंक ऑफ इट। इसमें क्या होता है, ऐसे पेड़ होते हैं नारियल जैसे, नारियल का नहीं, नारियल जैसे, तो ताड़ का मेनली बोलते हैं। एंड पीपल क्लाइम ऑन इट, और इसका स्टेम क्या करते हैं, स्टेम मान लो ऐसे ही, यहाँ थोड़ा सा क्या करते हैं, ये कट लगाते हैं, यहीं पे क्या करते हैं, अर्दन पॉट लगा लेते हैं, अर्दन पॉट, एंड सैप ऑफ दिस प्लांट स्टार्ट गेटिंग इनटू दिस
especially 30 days, 40 days, that is filled. At the same time, bacteria is also there in environment. Bacteria also found into this sap, and they convert some part of the sap into the alcohol. अल्कोहल में क्या होता है, कुछ पार्ट उसका कन्वर्ट हो जाता है, और उसी की वजह से इसको उतारते हैं 40 दिन बाद, ठीक है। स्पेशली इन बिहार, यूपी, सब पार्ट ऑफ यूपी ऑल्सो, नॉर्थ इंडिया में सब जगह, लेकिन ये सब स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे लोग ज्यादा पीते हैं। तो क्या होगा, इसको साउथ इंडिया में तो सब पीते ही पीते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ से उतारते हैं उसको, फिर पीते हैं। they called natural they called local beverage, इसको क्या बोलते हैं, लोकल बीवरेज है, ओके। चलिए, तो ये सब बातें होंगे। नेक्स्ट इज द डो। डो मीन्स गुथा हुआ आटा बोलते हैं, द नीडेड फ्लावर, गुथे हुआ आटा क्या बोलते हैं, डो। फर्स्ट पॉइंट, फॉर मेकिंग डोसा एंड इडली बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया यूटिलाइज, देखा होगा आपने, जो इडली का जो बैटर होता होगा, डोसे का जो बैटर होता होगा, उसमें स्पेशली आपका जो ईस्ट होता है उसको भी डालते हैं, लेकिन दिस इज द सुटेबल, ओके। उसको रात भर फर्मेंट हो जाता है, फिर वो इतना रहता तो उठ जाता है, ठीक है, ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट इज द फॉर मेकिंग ब्रेड बाय यूजिंग फंगी। फंगस के यूज करने से भी होता है। And name of the fungus is Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae. That is called baker's yeast. And the same fungus is also used to make the vinegar in the case of sugar sap. Sugar sap के लिए भी जो होता है, मधुकंडी या महुए का जो होता है वहां भी यूज करते हैं हम। और you all have studied that there are many types of bread. कुछ बहुत महंगे ब्रेड आते हैं, but in that case different टाइप ऑफ फंगस इज यूज्ड। दूसरे तरह का फंगस यूज करते हैं बच्चों फॉर स्पेसिफिक कलर एंड ऑर्डर, वी कैन से अरोमा, ठीक है ना। तो उसी लिए उसका दाम ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द पफनेस, द पफी अपीयरेंस ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2। CO2 की वजह से ही, जैसे मान लीजिए आपने इतना करा है, ये पूरा ये ब्रेड का है, इसमें आटे में क्या मिलाते हैं, जो डो होता है उसमें क्या मिलाते हैं, फंगस मिला दिए, मिलाने के बाद छोड़ दिए, कुछ दिन में उठ जाता है ये, फिर क्या करते हैं, दे फर्मेंट इनटू द फर्नेस। फर्नेस में क्या करते हैं, इसको या ओवन में डाल के क्या करते हैं, हॉट करते हैं, और CO2 जितना भी अंदर रहेगी बनती रहेगी, उसको उठाती रहेगी, ये इस तरह उड़ जाता है ये, और दे कट इनटू द स्लाइसेस। दिस इज हाउ द ब्रेड्स आर मेड, ठीक है बच्चों। चलो, तो इट इज आस्क्ड इन मेनी एग्जामिनेशंस, इन योर आल्सो, puffy appearance due to production of CO2, okay। next is the cheese. Before we jump into the topic cheese, we should know the difference between butter and cheese. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर बटर और चीज, यस, चीज इज द स्पेशली प्रोटीन ऑफ द मिल्क। Cheese is the especially protein of the milk. Butter is the fat of the milk, ठीक है। और which is healthy option for a person who is fat, जो ऑलरेडी मोटा आदमी है उसके लिए कौन सा हेल्दी ऑप्शन है, चीज है, ठीक है, क्योंकि चीज इज मेड अप ऑफ द प्रोटीन। अब प्रोटीन इज इजीली डाइजेस्टेड, इजीली क्या होता है, डाइजेस्ट रहता है, ठीक है बच्चों। तो डाइजेस्ट हो जाता है इजली। और डू यू नो पनीर, अगर पनीर को रख दो, उसको राइपेनिंग कर दो, राइपेनिंग मतलब कि फर्मेंट कर दो, कुछ समय के लिए छोड़ दो, स्पेसिफिक फंगस कैसे माइक्रोब्स आर यूज्ड ऑन दैट, 1-1.5 साल लगते हैं इसे बनने में चीज के। फ्रांस एंड US एंड जर्मनी, 3 द टॉप कंट्रीज आर फॉर प्रोड्यूसिंग चीज। वहां पे पनीर बहुत कम खाते हैं लोग, ठीक है, वो चीज का यूज ज्यादा करते हैं, ठीक है, क्योंकि पनीर में टेस्ट उतना नहीं आता इन कंपैरिजन टू चीज, बट चीज इज वेरी गुड इन टेस्ट आल्सो एंड इन अरोमा एंड फ्लेवर, ऑल दिस,
ओके। और चीज का यूज कई तरह का यूज कर सकते हैं, कई तरह से, ठीक है बच्चों। तो चीज हो गया ये फैट, बटर का, बटर किसका होता है, फैट का, ओके। सो चीज इज द मिल्क प्रोटीन, केसिन प्रोटीन होती है ना, जैसे आपने देखा पनीर, पनीर को ऐसे रख दिया, बता दी मैंने आपको, ठीक है। चले, चीज इज ऑफ टू टाइप्स, स्विस चीज एंड रोकेफोर्ट चीज। स्विस चीज लग रहा है स्विट्जरलैंड ना। द कलर ऑफ द स्विस चीज इज आई कैन से येलो, ऐसा होता है, येलो होता है। आप गूगल में जाइएगा, यू कैन सर्च ऑन देयर, ओके। बड़े बड़े होल होते हैं इसमें, अ वेरी गुड इन टेस्ट, ओके। रोकेफोर्ट इट इज व्हाइट प्लस ब्लूइश, क्योंकि इसमें फंगस यूज होती है। इसमें क्या होती है, इसमें फंगस, इसमें क्या होती है, बैक्टीरिया, ठीक है। बट कलर बहुत अच्छा आता है, द कलर इज वेरी गुड। Propionibacterium shermani, microbes is known as Propionibacterium shermani, and here is fungus. This name is not given in your syllabus, but I have written Penicillium roqueforti. Penicillium roqueforti, it is a fungus, okay. And that's all, okay. Just for students of my school, have a screenshot, okay, and you all will complete into your notes in chapter number 10, okay, and send me, I can see that photograph of this also on my WhatsApp, okay. So if there is any doubt, you may ask in WhatsApp group, my WhatsApp group, okay, and in my comment section also, okay. So thanks for watching, take care, bye bye.